We are doing chapter devotional path. In that we have read about Hinduism, Buddhism, Jainism, saints of Maharashtra, and now today we are going to read about new religious developments in North India. You have read about South India. Now today I am going to start with new religious developments that took place in North India. अब आपने इसमें बताना है नॉर्थ इंडिया में पीरियड आफ्टर 13th century. अब 13th century के बाद क्या हुआ इन नॉर्थ इंडिया? देयर वर वेरियस डेवलपमेंट्स. तो व्हाट हैपेंड? इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, सूफिज्म, नाथपंथी, सिद्धास, yogis influenced one and other. In 13th century, Brahminical Hindus, Islam, Sufism, and Nathapanthe Siddhas, yogis influenced one another. New towns and kingdoms were emerged. New towns and kingdoms emerged हो चुकी थी. And in these new towns, people were taking up new professions, finding new roles for themselves. क्योंकि नए नए towns develop हो चुके थे and people they were finding new professions for themselves, new roles for themselves, such as कौन से लोग? Especially craft persons, peasants, traders, laborers. They were attracted towards new sales and spread their ideas. These people, such as peasants, craft work persons, traders, they were attracted towards new saints and started spreading their ideas. So 13th century में various changes occurred where new towns were developed and ideas of Brahminical Hinduism, Sufism, Nathpanthi, Siddhas, yogis influenced one another. So as the development of new towns, people started finding new jobs for themselves, new roles for themselves, and they were attracted towards various saints. They were attracted towards the new saints and started spreading their ideas. कौन से लोग? Peasants, workers, craft persons, and traders. अब some of them like, अब कौन से new saints? Kabir, Guru Nanak Dev Ji rejected all the orthodox religions. गुरु नानक देव जी एंड संत कबीर इन्होंने ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स को रिजेक्ट किया. ऑर्थोडॉक्स मींस रिजिड जो होते थे. फॉर एग्जांपल ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, तो इसे ऑर्थोडॉक्स कहा गया. रिजिड थे ये लोग. दे रिजेक्टेड ऑल द ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स. अदर्स लाइक तुलसीदास एंड सूरदास. Tulsidas and Surdas accepted existing beliefs and practices. Tulsidas was the devotee of Lord Rama. Tulsidas was devotee of Lord Ram, and Tulsidas wrote Ramcharitmanas in Awadhi language. Listen again. People of North India, they were attracted towards the ideas of new saints such as Sant Kabir, Guru Nanak. As these saints, they were against orthodox religions. They rejected orthodox religions. Whereas Tulsidas and आप कह सकते हो कि सूरदास accepted existing beliefs and practices. इन्होंने उनको accept किया था. Existing beliefs and practices. Tulsidas, he was devotee of Lord Ram, and he wrote Ramcharitmanas. Here you have to learn for 1 mark. In which language? Awadhi language. Tulsidas was devotee of Lord Ram, and he wrote Ramcharitmanas in Awadhi language. Awadhi आपने बताना है language used in Eastern Uttar Pradesh. Awadhi language आपने बताना है a language used in, कहाँ पे अवधी लैंग्वेज यूज होती थी? इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश. ठीक है, यू हैव टू लर्न लैंग्वेज यूज्ड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश. ठीक,
तो तुलसीदास ने क्या लिखी? रामचरित मानस। इन विच लैंग्वेज? इन अवधी लैंग्वेज। सूरदास वाज डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तुलसीदास वाज डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम, whereas Surdas was devotee of Lord Krishna, and he wrote Sur Sagar. Tulsidas wrote Ramcharitmanas, सूरदास रोट सूर सागर। और भी इनकी कंपोजिशंस हैं, कौन कौन सी? सूर सागर, सूर आप एक कहोगे सूर सागर, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, एंड सूर सारावली, सूर सारावली। These are the books written by Surdas. First of all, Sursagar, then Sur, Sarvali, and Sahitya Lahiri. These were the books written by Surdas. Surdas was devotee of Lord Krishna, whereas Tulsidas was devotee of Lord Ram. Who wrote Ramcharitmanas? तुलसीदास। who wrote सूर सागर? सूरदास। साहित्य लहरी किसने लिखी? सूरदास। अब शंकराचार्य, शंकरदेवा, शंकरदेवा ऑफ असम, शंकरदेवा ऑफ असम। शंकरदेवा कहाँ के सेंट? असम के, लेट 15th सेंचुरी के। शंकरदेवा ऑफ असम, he was devotee of Lord Vishnu. Lord Vishnu के थे, and composed poems and plays in Assamese. Shankardeva of Assam, he was devotee of Lord Vishnu, and he composed various poems and plays in which language? Assami language, क्योंकि वो असम के थे, and he wrote various poems and plays in Assami language. He was devotee of Lord Vishnu, and he began the practice of setting up नामघर्स। इन्होंने क्या सेटअप करने शुरू किए? नामघर और हाउसेस ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर। आ प्रैक्टिस दैट कंटिन्यू टू डेट। इन्होंने नामघर सेटअप किए जहाँ पे लोग बैठ के प्रेयर करते थे, और वो आज की डेट में भी नामघर हैं जहाँ पे जाके लोग पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं। नामघर सेटअप किए। तो दीज नामघर्स वर स्टार्टेड सेटिंग अप बाय, किसने स्टार्ट किए? शंकरदेवा। शंकरदेवा कहाँ के? असम के, एंड ही वाज डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। शंकरदेवा वाज डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो ही कंपोज्ड वेरियस पोएम्स एंड प्लेज इन असमी लैंग्वेज। अभी मैंने 3 के बारे में पढ़ा है, 3 सेंट्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहना कि नॉर्थ इंडिया के लोग जो थे ना, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ संत कबीर, गुरु नानक देव जी, है ना। And both the Sant Kabir and Guru Nanak Dev Ji, they rejected the आप कहोगे orthodox religions, whereas Tulsidas and आप कहोगे Surdas, they believed in existing beliefs and practices. ठीक। Tulsidas wrote Ramcharitmanas. Tulsidas was devotee of Lord Ram, and he wrote Ramcharitmanas in Avdi language. ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की ये लैंग्वेज है। ठीक है। फिर आपने कहना सूरदास, ही वाज डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, एंड ही रोट सूर सागर। एंड फिर आप बताओगे नेक्स्ट शंकरदेवा। शंकरदेवा कहाँ के? असम के। तो इसमें आप बताओगे शंकरदेवा ने बहुत सी पोएम्स एंड प्लेज लिखे इन असमी लैंग्वेज, एंड ही वाज डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। तीनों का अलग अलग है। तुलसीदास वाज डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम, एंड सूरदास वाज डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, एंड देन आई हैव रेड अबाउट शंकरदेवा, ही वाज डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, एंड ही रोट इन असमी लैंग्वेज, एंड ही एस्टैब्लिश्ड नामघर। क्या सेटअप किया? नामघर, वेयर पीपल कुड रिसाइट प्रेयर्स। ठीक है, जहाँ पे लोग प्रेयर्स कर सकते थे, नामघर। तो इन्होंने नामघर सेटअप किए। इज इट क्लियर? जो आज की डेट में भी है। Next, traditions also included saints like Dadu Dayal, Ravidas and Mirabai. आपने इन सेंट्स के भी नाम याद रखने हैं, दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। मीराबाई कौन थी? राजपूत प्रिंसेस। मीराबाई वाज राजपूत प्रिंसेस।
आप बताओगे ये जो ट्रेडिशन था ना नॉर्थ इंडिया का, दिस ट्रेडिशन आल्सो इंक्लूडेड दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई. दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई. मीराबाई जो थी, मीराबाई वाज राजपूत प्रिंसेस and married into a royal family of Mewar in the 16th century. अब यहाँ पे मीराबाई के बारे में आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. शी वाज राजपूत प्रिंसेस, मैरिड टू अ रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़. मेवाड़ की एक रॉयल फैमिली में उसकी मैरिज हुई थी. इन 16th century, मीराबाई वाज द डिसिपल ऑफ रविदास. मीराबाई, रविदास उसके गुरु थे. मीराबाई, she was disciple of Ravidas, a saint from a caste considered untouchable. Ravidas was saint from untouchable caste, and Mirabai was disciple of Ravidas. She was devoted to Krishna and composed various bhajans expressing her true devotion. Mirabai जो थी, she was, आप कहोगे राजपूत प्रिंसेस, मैरिड इनटू अ रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ इन 16th century. She was disciple of Sant Ravidas from untouchable family, and Mirabai was devotee of Lord Krishna, and she composed various bhajans to express her true devotion towards Lord Krishna. Her songs openly challenged the norms of the upper caste and became popular with the masses in Rajasthan and Gujarat. जो मीराबाई के सॉन्ग्स थे ना, उसने टोटली चैलेंज किया अपने सॉन्ग्स में, भजन्स में, टू द discrimination that was done with the low caste people. She challenged the high caste people. उसने अपने भजन्स में हाई कास्ट लोगों को चैलेंज किया. And she was against the discrimination that was done with the low caste people. और मीराबाई के जो भजन्स थे ना, became popular among the people of, among the masses और people of राजस्थान and गुजरात. गुजरात और राजस्थान के लोगों में मीराबाई के भजन बहुत पॉपुलर हुए. थ्रू हर भजन she challenged the norms of upper caste. उसने किसको चैलेंज किया? norms of upper caste. अब आपको यहाँ पे मीराबाई के बारे में याद रखना है. she was Rajput princess, married in the royal family of Mewar in 16th century. She was disciple of Sant Ravidas, and Sant Ravidas from untouchable caste. She was devotee of Lord Krishna. She wrote various bhajans to express her true devotion towards Lord Krishna. And मीराबाई के जो भजन्स थे ना, जो सॉन्ग्स थे, they openly challenged the norms of the caste system that was prevailing in upper caste. उसने upper caste को challenge किया, उसके songs ने challenge किया to the norms of the upper caste. upper caste के norms को challenge किया, and her songs became popular among the people of Rajasthan and Gujarat. मीराबाई के songs किस कहाँ के लोगों में popular हुए? राजस्थान and गुजरात. Now is it clear? मीराबाई के बारे में अगर आपको लिखना है तो can you write? अब एक मिनट, अब मैं आपसे पूछूं what do you know about संत तुलसीदास, तो आप क्या बोलोगे? कि तुलसीदास was true devotee of Lord Ram and he wrote Ramcharitmanas. In which language? Avdi language, means language of eastern उत्तर प्रदेश. Now is it clear? फिर अगर मैं आपको पूछूं कि आपने सूर सागर के बारे में बताओ, तो आपने कहना सूर सागर was great saint of North India and he was true devotee of Lord Krishna. फिर आप कह सकते हो कि ही रोट सूर सागर, साहित्य लहरी, ये सब उन्होंने लिखा सूरदास ने. एंड ही बिलीव्ड इन एग्जिस्टिंग बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस. ये आप तुलसीदास में भी लिख सकते हो, ये आप सूरदास में भी लिख सकते हो, बिलीव्ड इन एज एग्जिस्टिंग बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैं आपको पूछूं शंकर देवा के बारे में, तो आपने कहना सेंट ऑफ असम. असम के सेंट थे शंकर देवा, और आपने बताना है ही रोट वेरियस पोएम्स एंड plays, and in which language? Assami language. Assami language में लिखे. and he established Namghar, which are still popular these days. Namghar set up किए, Namghar where people could recite prayers. ठीक है, और आज की डेट में भी ये है. ठीक है, तो तीनों के बारे में 3 points आपके बन गए.
तुलसीदास के बारे में आप बताओगे, बिलीव्ड इन, तुलसीदास बिलीव्ड इन द प्रिवेलिंग बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, एंड he was true devotee of Lord Ram. He wrote Ramcharitmanas. In which language? Avdi language. It was the language of the Eastern Uttar Pradesh. Next आपको मैं पूछूं, write about सूरदास, तो आपने कहना he was great saint of North India. He believed in existing beliefs and practices. फिर आप दोनों में ये पॉइंट आएगा, दोनों में ये पॉइंट आएंगे, he was saint of North India. He believed in existing beliefs and practices. तुलसीदास एंड सूरदास दोनों में ये पॉइंट कॉमन है. फिर आप सूरदास में बताओगे कि was true devotee of Lord Krishna and he wrote सूरसागर, ठीक. फिर आप आपको पूछा जाए अगर नामदेव, सॉरी नामदेव नहीं, आपको अगर पूछा जाए शंकर देवा, तो आपने बताना है शंकर देवा was from Assam. He was saint of Assam. He wrote various poems and plays in which language? In Assami language. 2 points बन गए. फिर आपने कहना है कि he established नामघर where people could recite prayers, जहाँ पे लोग prayer कर सकते थे, and these नामघर्स are still popular among the people. तो next मीराबाई. मीराबाई के बारे में अगर आपको पूछा जाए who was दादू दयाल and who was रविदास, तो आपको पता होना चाहिए दादू दयाल नॉर्थ इंडिया के ही सेंट थे. फिर रविदास आपने कहना he was saint of North India. He was from untouchable caste and he was guru of मीराबाई. आप मीराबाई के गुरु थे ये, ठीक है. फिर आपने बताना है कि अगर आपको पूछा जाए कि मीराबाई के बारे में, तो आपने कहना शी वाज राजपूत प्रिंसेस. मीराबाई एक राजपूत प्रिंसेस थी, ठीक है. फिर आपने कहना मैरिड इनटू अ रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़. उसकी मैरिज रॉयल फैमिली मेवाड़ में हुई इन 16th सेंचुरी में, ठीक है. फिर आपने बताना कि शी वाज डिसाइपल, किसकी बन गई डिसाइपल? रविदास की, संत रविदास की, गुरु रविदास की. शी वाज डिसाइपल ऑफ गुरु रविदास. शी वाज ट्रू डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है. वो किसको मानती थी? लॉर्ड कृष्णा में बिलीव करती थी. एंड शी रोट वेरियस भजन्स टू एक्सप्रेस हर ट्रू डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा, ठीक. फिर आपने बताना है इन हर सॉन्ग्स शी चैलेंज द नॉर्म्स ऑफ द अपर कास्ट. उसने अपर कास्ट के लोगों के नॉर्म्स को चैलेंज किया थ्रू हर सॉन्ग्स. And her songs became, या bhajans became popular among the people of Rajasthan and Gujarat. So this is about मीराबाई, ठीक है. तो next अब आपने बताना है unique feature of most of the saints is that their works were composed in regional languages and could be sung. अब जो सेंट जिस एरिया में पॉपुलर हुए उसी लैंग्वेज में उन्होंने प्रीच किया. फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया शंकर देवा was saint of Assam and he wrote his religious text in Assami language. तो जो सेंट जिस रीजन के थे उसी रीजन की लैंग्वेजेस में उन्होंने प्रीच किया, ठीक है. उन्होंने कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं ली जो लोगों को समझ ही नहीं आती थी. दे प्रीच्ड इन द कॉमन लैंग्वेजेस ऑफ द पीपल. अब poorest, most deprived communities and women transmitted these songs, often adding their own experiences. Thus, the songs as we have them today are as much a creation of saints as the generations of the people who sang them. They have become a part of our living popular culture. So what happened as these saints preached in the language of the regional people. जिस रीजन में उन्होंने प्रीच किया उसी रीजन की लैंग्वेज में ही उन्होंने अपने सॉन्ग्स प्लेज लिखे. एंड दीज वर संग बाय पीपल. लोग उनको गाते थे एंड लोगों ने अपने भी व्यूज उसमें एक्सप्रेस किए. तो आज की डेट में अगर हम कहें दे हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर लिविंग पॉपुलर कल्चर. तो मेन सेंट्स ने उसी लैंग्वेज में प्रीच किया जिस रीजन को वो बिलोंग करते थे. अब आगे संत कबीर. संत कबीर के बारे में आपने पढ़ना है. संत कबीर lived in the 15th 16th century. 15th and 16th century. Lived in 15th and 16th century. Was one of the most influential saints. He was brought up in the family of Muslim जुलाहास और वीवर्स. संत कबीर 15th-16th सेंचुरी के लिए आपने तो याद करना है. The most influential saint of 15th-16th century was संत कबीर, ठीक है. फिर आपने कहना है कि उनका पालन पोषण जो हुआ, he was brought up
कैसी फैमिली में उनका पालन पोषण हुआ? ही वॉज ब्रॉट अप इन द फैमिली ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम्स की फैमिली में इनकी केयर की गई। ये नहीं पता कि उनका जन्म हिंदू फैमिली में हुआ था कि मुस्लिम फैमिली में हुआ था, ऐसा कुछ नहीं पता किसी को भी। तो ही वॉज ब्रॉट अप इन द फैमिली ऑफ मुस्लिम जुलाहाज और वीवर्स सेटल्ड इन और नियर द सिटी ऑफ बनारस वाराणसी। ये तो इनके जो फादर थे ना नीरू, उनको मिले थे नदी के किनारे, एक बच्चा मिला था। तो पता नहीं वो हिंदू कास्ट का था कि मुस्लिम, उनको नहीं पता था, बट उन्होंने इन्हें पाला। ब्रोट अप इन द मुस्लिम फैमिली, कबीर वाज ब्रोट अप इन द विच फैमिली? मुस्लिम फैमिली। अब वो मुस्लिम फैमिली कैसी थी? वो वीवर्स थे, जुलाहा थे, इनके फादर वीवर थे। जुलाहा एक ही बात है, वीवर एंड जुलाहा। इनके फादर वीवर थे और कौन से एरिया के थे? बनारस वाराणसी, ठीक है। तो वी हैव लिटिल नॉलेज अबाउट हिज लाइफ, कबीर की लाइफ के बारे में वो कहते हैं इतनी ज्यादा वी हैव रिलायबल लिटिल रिलायबल इंफॉर्मेशन, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। वी केम टू नो अबाउट हिज आइडियाज, हमें उनके आइडियाज के बारे में कैसे पता चला? फ्रॉम अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस कॉल्ड साखीज एंड पद्स। वी केम टू नो अबाउट द संत कबीर, हमें अगर उनके बारे में नॉलेज मिली भी है, उनके आइडियाज के बारे में हमें पता भी चला है, तो कहाँ से? फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ, कहाँ से? वर्सेस कॉल्ड साखीज एंड पद्स, तो कंपोज्ड बाय हिम एंड संग बाय वॉन्डरिंग भजन सिंगर्स। कबीर के दोहे आपको पता होंगे, कौन बोलते हैं? वॉन्डरिंग भजन सिंगर्स। Some of these were later collected and preserved in Guru Granth Sahib, पंचवानी एंड बीजक। कबीर के आइडियाज कहाँ पे ऐड किए गए? गुरु ग्रंथ साहब में भी हैं, पंचवानी में भी हैं, बीजक में भी हैं। नो लिसन अगेन, संत कबीर 15th and 16th century के सेंट, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट ऑफ 15th to 16th century। किसी को नहीं पता बर्थ कौन सी फैमिली में हुआ, बट ही वाज ब्रॉट अप इन द मुस्लिम फैमिली ऑफ, कौन थे फादर इनके? वीवर जुलाहा ऑफ बनारस, बनारस के रहने वाले थे, ठीक है। हिस्टोरियंस हैड लिटिल नॉलेज अबाउट कबीर, but we came to know about the ideas of Sant Kabir from the collection of the verses such as Sakhis and Pads। अब कबीर के जो दोहाज हैं, दे आर इंक्लूडेड इन, कहाँ पे इनके दो पाई जाते हैं दोहाज? गुरु ग्रंथ साहिब में, पंचवाणी एंड बीजक, पंचवाणी एंड बीजक। और इनके जो दोहाज हैं, भजन हैं, वो कौन बोलते हैं? वॉन्डरिंग भजन सिंगर्स, वॉन्डरिंग भजन सिंगर्स, तो वो इनके भजन को गाते हैं। तो दिस इज कबीर्स टीचिंग वर बेस्ड ऑन कंप्लीट, अब इनकी ना टीचिंग्स आ जाएंगी, टीचिंग्स ऑफ संत कबीर। नो लिसन, अब इन्होंने क्या क्या किया? सबसे पहले तो उन्होंने रिलीजियस ट्रेडिशंस जो थे ना तब के, रिचुअल्स, ये सबको रिजेक्ट किया। ही डिडंट बिलीव इन द रिचुअलिज्म, कबीर रिचुअलिज्म में बिलीव नहीं करते थे, और ये आइडल वर्शिप में भी बिलीव नहीं करते थे। इस टीचिंग्स ओपनली रिडिक्यूल्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम। तो लग थे। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोएट्री वाज हिंदी, इन्होंने मोस्टली जो अपनी पोएम्स लिखी दैट वर इन हिंदी, नॉट इन संस्कृत, ताकि ऑर्डिनरी लोगों को समझ आ सके, ठीक है, ताकि लोग उन्हें पढ़ेंगे तो उन्हें समझ आएगी। ही आल्सो समटाइम यूज्ड क्रिप्टिक लैंग्वेज विच इज डिफिकल्ट टू फॉलो, कई बार ऐसी लैंग्वेज उन्होंने यूज की है, ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं, टफ क्रिप्टिक वर्ड्स, जो कि लोगों को समझ नहीं आए, जो कि मुश्किल है समझने। कबीर बिलीव्ड इन, अब ये किसमें बिलीव करते थे? फॉर्मलेस गॉड, सुप्रीम गॉड, फॉर्मलेस, वो कहते थे भगवान का कोई आकार नहीं है, ठीक है। एंड प्रीच दैट द ओनली पाथ टू साल्वेशन वाज थ्रू भक्ति और डिवोशन। कबीर ड्रू हिज फॉलोअर्स फ्रॉम among both Hindus and Muslims। अब एक मिनट, आपको संत कबीर के बारे में 5 मार्क्स क्वेश्चन आ जाए तो हाउ कैन यू राइट, आप कैसे लिख सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उनके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में आप उनकी इंट्रोडक्शन बताओगे कि कहाँ बर्थ हुआ, किस, आपको बर्थ के बारे में नहीं बताना, आपने कहना कि नॉर्थ इंडिया के सेंट थे। फिर आपने बताना 15th-16th सेंचुरी के इन्फ्लुएंशियल सेंट थे वो। तो फिर आपने कहना ब्रोट अप इन द फैमिली ऑफ मुस्लिम्स एंड इज
फादर वाज वीवर फ्रॉम बनारस, बनारस या वाराणसी एक ही बात है, वहां के वीवर थे। तो स्टूडेंट्स हैड लिटिल नॉलेज अबाउट कबीर, बट वी केम टू नो अबाउट कबीर फ्रॉम द साखीज एंड पद्स। लेटर हिज वाणी वाज इंक्लूडेड इन, कहाँ पे ऐड की गई? गुरु ग्रंथ साहब, बीजक एंड पंचवाणी। कई बार 1 मार्क में यही पूछा जा सकता है कि कबीर वाणी वाज इंक्लूडेड इन विच रिलीजियस टेक्स्ट, तो आपने कहना गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी एंड बीजक, तो आपका आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, फिर आपने कहना है कि कबीर जो थे ना, उन्होंने रिलीजियस रिचुअलिज्म में, ही डिडंट बिलीव इन रिचुअलिज्म, वो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड मुस्लिम इस्लाम से टोटली डिफरेंट थे, हिज आइडियाज वर टोटली डिफरेंट, ही डिडंट बिलीव इन रिचुअलिज्म, ही डिडंट बिलीव इन कास्टिज्म, वो किसी में भी बिलीव नहीं करते थे। ही taught the method to attain salvation was the true devotion towards God। वो कहते थे भगवान को अगर किसी ने पाना है ना, तो वो ट्रू डिवोशन, भक्ति और डिवोशन के साथ हम भगवान को पा सकते हैं। He believed in formless supreme God। वो कहते थे भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार। आप जब जिस ऐप का आप बिगनिंग में जब अपने स्कूल में प्रेयर करते हो तो आप ये पढ़ते हो ना, मूल मंत्र में निर्भव, निर्वैर, निराकार पढ़ते हो ना, तो सेम वही आइडिया कबीर और गुरु नानक देव जी और कबीर जी के यहाँ पे आइडिया सेम है। He didn't believe in the form, he believed in the formless God। वो कहते थे भगवान का कोई आकार नहीं है, he believed in supreme God, formless God। तो ऐसे वाले आइडियाज आप कबीर जी के बारे में बताओ। डिडंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, अगर आपको कबीर जी की टीचिंग्स आती हैं तो। ठीक है, तो नेक्स्ट इज गुरु नानक देव जी, बट आज मैं आपको गुरु नानक देव जी करवा के, क्योंकि फिर दोनों सेम हो जाना, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी लर्निंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार रिकैप करते हैं व्हाट वी हैव डन टुडे। नॉर्थ इंडिया, आप नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ा आपने, फिर आपने नॉर्थ इंडिया के कुछ सेंट्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव रेड अबाउट तुलसीदास, देन यू हैव रेड अबाउट सूरदास। आपको इनकी लाइंस आनी चाहिए, 2-2, 3-3 लाइंस पेपर में लिखनी आई तो यू शुड नो। ठीक है, सूरदास के बारे में, तुलसीदास के बारे में, फिर आपको शंकर देवा के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देन यू शुड आल्सो नो अबाउट मीराबाई, मीराबाई के बारे में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाना है। देन रविदास, संत रविदास, दादू दयाल वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया के सेंट। फिर आपको रविदास आप कहोगे कि अनटचेबल फैमिली के थे, और रविदास, संत रविदास जी की भी बानी भी आप बोलोगे कि दैट इज इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब। आप अपने वे से बता सकते हो। ठीक है, तो फिर आप बता सकते हो कि मीराबाई जो थी, शी वाज डिसाइपल ऑफ संत रविदास। ठीक है, तो इस वे से आप बता सकते हो। रविदास जी, ही वाज डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, क्योंकि मीराबाई भी डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा थी, तो रविदास ही वाज आल्सो डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, तो इस वे से आप रविदास जी के बारे में बता सकते हो, तुलसीदास जी के बारे में भी। तो नेक्स्ट इज मीराबाई, मीराबाई के बारे में 5 मार्क्स का क्वेश्चन यू कैन राइट। आपको चाहे बैक पे है चाहे नहीं है, किसको चैलेंज किया मीराबाई ने? थ्रू हिज भजन्स एंड सॉन्ग्स टू द नॉर्म्स ऑफ अपर कास्ट, बिकॉज मीराबाई वाज अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन दैट वाज डन विद द पीपल ऑफ लो कास्ट। हर आपने सेंट के बारे में बताना है कि हर कोई इस कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, कोई भी सेंट। तो इसके बाद मीराबाई के बाद आपने नेक्स्ट जो आपने पढ़ा दैट इज अबाउट, यू हैव रेड अबाउट कबीर, संत कबीर के बारे में भी आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन बताने के बाद टीचिंग्स ऑफ संत कबीर। दो दिस क्वेश्चन इज नॉट गिवन एट द बैक बट कैन बी आस्क्ड इन द पेपर, व्हाट डू नो अबाउट संत कबीर, राइट हिज टीचिंग्स। ठीक है, संत कबीर के बारे में पहले आप इंट्रोडक्शन दे दोगे कि संत कबीर जो थे, आप बताओ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया 15th-16th सेंचुरी के। फिर आप बताओगे ब्रॉट अप इन द मुस्लिम फैमिली, फादर वाज वीवर और जुलाहा बनारस। हिस्टोरियंस हैड नो नॉलेज अबाउट, आप बता सकते हो अबाउट कबीर, मोस्ट नॉलेज अबाउट, हिस्टोरियंस के पास ज्यादा नॉलेज नहीं है अबाउट संत कबीर, बट वी केम टू नो अबाउट संत कबीर फ्रॉम द collection of verses such as Sakhis and Pads। फिर आप बताओगे the वाणी of Sant Kabir was added in, आप कहाँ पे बता सकते हो, गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी एंड बीजक। फिर आप उनकी टीचिंग्स लिख दोगे। टीचिंग्स तो इजी है, आप टीचिंग्स में बताओगे बिलीव्ड इन फॉर्मलेस गॉड, इन सुप्रीम गॉड। तो डू लाइक दिस, ओके, नो प्रॉब्लम, वेलकम, अगर आप अच्छे वे से रीडिंग करोगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।